Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now this is the barrier in front of you. Now to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स एंड यू हैव गेन्ड दिस नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज विल बी वेरी क्रिटिकल. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes and you have been in your room going through all the books, वो सब waste हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. Right? ये कहाँ मिलेगी? This is the common sense. But remember, this common sense is not that commonly available. Right? But this our aspirant hero, ये aspirant hero ready है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल देयर स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर देयर स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हियर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वॉन्ट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट विल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विद मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है. तो आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. This session. Yes. Sir, question number 50, right? Miyawaki method. Okay. Yeah. So, sir, one approach could be like, since the question is very crisp in itself, like Miyawaki method. So it is a method. So we are trying to do something, and Miyawaki is a Japanese name. So we should know that it is definitely something about innovation, and Japanese are very famous for their ecological practices also.
So I would eliminate option A because arid and semi-arid areas is nothing that we find in Japan. So I don't think that they would do anything like this. A should be eliminated, like on those grounds. Hmm. And B also doesn't seem like a very good option, like development of gardens using genetically modified flora, because it is not something which is doing very, anything good to humanity in a lot of sense. So C and D would be my, like 50-50. Good. Anyone else who wants to contribute to this particular line of thought? So there is B and C, which is those options. Answer: development of gardens or creation of mini forest. Hmm. यार एक चीज ना वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, ऐसा नहीं है बात नहीं करी है, पता नहीं पीपल आर बीइंग शाय और जस्ट अ मॉर्निंग थिंग व्हिच कीप्स यू लाइक क्वाइट। हमने इस चीज के बारे में बात करी थी कि हम जब भी ऐसे वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ मेथड और समथिंग, ठीक है, तो अभी उत्कर्ष ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस कि इट इज हाईली प्रिसाइज। कैसा होगा वो? प्रिसाइज होगा। अब तुमसे नया पूछ रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट एंशिएंट medieval थिंग ना, इट इज नॉट एंशिएंट medieval क्वेश्चन। तो जब भी तुमसे पूछेंगे दे विल बी आस्किंग यू समथिंग न्यू विच इज हैपनिंग, समथिंग विच इज नॉट कॉमन, समथिंग विच इज इट इज नॉट कॉमन। अब ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं ना, प्रिसाइज, न्यू एंड नॉट कॉमन, प्लीज आइडेंटिफाई दीज टर्म्स। इनको आइडेंटिफाई करके चलोगे ना यार, तुम्हारा उस पॉइंट पे गलत हो ही नहीं सकता। पीपल विल लाइक यार आई डोंट नो अबाउट मियावाकी मेथड, आई एम आस्किंग यू स्टार्ट एलिमिनेशन, ठीक है, स्टार्ट एलिमिनेशन हाउ, वट एवर द थिंग विल बी ओवर हेयर, यहां पर तुम एक्स वाई जेड कुछ डाल दो, इट इज नथिंग बट प्रमोशन ऑफ इट। चीज पहले से चल रही है, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंसिवली करना है, ठीक है। Right. Hmm. डोंट जस्ट फोकस ऑन द टर्म्स, इस पे टर्म्स पे फोकस मत करो, फोकस ऑन दीज एज वेल, ये भी तो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, प्रमोटिंग मतलब क्या, चीज पहले से हो रही है, हाँ, उसको हम और एक्सटेंसिवली तरीके से कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉमन थिंग, ठीक है। प्लस वो इसके साथ जब मिलेगी तो वो और भी ज्यादा कॉमन हो। कमर्शियल फार्मिंग, वी आर डूइंग ना कमर्शियल फार्मिंग, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, सबने अपने अपने मेथड्स बना रखे, ठीक है, एक रिमूव हो सकता है, ठीक है। सेकेंड वन इज हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज एंड सी सरफेस। अब क्या करोगे, विंड को उल्टा लटकाओगे, मतलब व्हाट व्हाट विंड के साथ क्या करने वाले, व्हाट यू आर गोइंग टू, तीन पंखों की जगह उसमें 6 पंख आने वाले हैं, व्हाट कुड बी द विंग स्पैन, थिंक अबाउट इट। यहाँ पर वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि विंड एनर्जी को अलग से करना, वो सिर्फ ये कह रहा है कि विंड एनर्जी का ना हार्वेस्ट कर लेंगे कोस्टल एरियाज पे। भाई तुम इसको नॉन विंडी एरियाज में करके बताओ तो हमको लगे कि ये कोई अच्छा मेथड है। दिस इज जस्ट डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी, नथिंग एल्स, ठीक है। अगेन अ हाईली कॉमन थिंग, ठीक है। क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, अच्छा, दिस इज मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू। अर्बन एरियाज में हाउ मेनी ऑफ द टाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, रेयरली वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट क्रिएशन इन दैट एरिया, बिकॉज फॉरेस्ट दिमाग में आता है, इट इज द पेरिफेरल एरियाज, ठीक है, अर्बन एरियाज के बिल्कुल पेरिफेरी में लोकेटेड है, more related to the rural areas or something of that sort, ठीक है, ट्राइबल माउंटेनस एरियाज, ठीक है। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा। जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा से अगर तुम कुछ मेडिसिन की तरफ मूव ऑन करते तो भी चीजें समझ में आती, बट यू आर डेवलपिंग व्हाट, यू आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ गार्डन्स, की डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अगेन जब इन दोनों को कंपेयर करने पर आ जाओगे बात पे, मैं अभी भी नहीं कह रहा कि तुम डायरेक्ट सी तक पहुंच जाओगे, नो, यू विल अगेन स्टार्ट कंपेयरिंग व्हाट, यू विल अगेन स्टार्ट कंपेयरिंग दीज थिंग्स, दीज टू ऑप्शंस बी एंड सी, देन यू विल अंडरस्टैंड
कि यार एनवायरनमेंट का टॉपिक है, विच वन शुड आई गो विद? शुड आई गो विद समथिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड और शुड आई गो विद समथिंग विच इज सस्टेनेबल इन नेचर? यहाँ पर सिर्फ ये एक सिंगल सा क्वेश्चन तुम्हें परफेक्ट चूज करने पर मजबूर करेगा। शुड आई गो विद समथिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड which could be unsustainable for the environment, it could be harmful for the environment as well at the same point of time? Genetically modified है ना, हम नेचर के साथ प्ले कर रहे हैं। नेचर के साथ हम जब भी प्ले करते हैं जब हमारी जान पर आ रखी हो, नॉट टू डेवलप सम काइंड ऑफ गार्डन्स। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, ठीक है। Yes, अगेन sir. गेस दैट जापानीज थिंग विल वर्क इन द फेवर एज वेल। वो भी इस चीज को थोड़ा सा अभी क्वेश्चन पे समय देने वाली जो बात होती है वो है। ठीक है। हु कैन ट्राई? अभिषेक 47 ट्राई करा? कर रखा होगा, बस अभी तो बताना बताना। सर वो होमवर्क था थोड़ा ना? तो मैंने बनाया नहीं, बाकी सारे ट्राई किए, बस वही स्टैटिक लगा, बाकी सब ठीक था। 47 किसको लगता है भाई? सर गोल्डन महसीर ना एक बार पीवाईक्यू में भी आया हुआ है पहले, ठीक है। तो एज अ फिश वो वहां पे लिखा फिश, ही हुआ था। फिश आया हुआ था वहां पे। और कोई भी और तरीका है किसी भी प्रकार का? मान लो हम बहुत लेजी, हमने पीवाई की भी नहीं पढ़े। गोल्ड फिश होती है ना, तो वहां से हो सकता है। नहीं, गोल्डन बर्ड भी हो सकता है। ये डिस्क्रिमिनेशन है। और बताओ। बाकी सारे जो बर्ड्स की तरह साउंड कर रहे हैं, और ये थोड़ा। है हाँ। सर स्पून बिल तो साउंड कर रहा है थोड़ा। स्पून बिल साउंड कर? चलो कोई बात नहीं, अभी 25 में की शाम को बात करते हैं, ठीक है? ऐसे ना खुद का दोबारा क्वेश्चन आ जाएगा तो आई लास्ट, क्योंकि कौन सा कैसा साउंड कर रहा था। तुम्हें यहाँ पे बर्ड्स के साउंड सुनाई दे रहे हैं। ठीक है। ये जबरदस्ती नहीं करना है भाई उसके साथ। नॉलेज उसकी नहीं है तो मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती नहीं करना है। आई वॉज आस्किंग यू दिस बिकॉज आई थॉट समवन वुड से कि ठीक है, विल मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है लीव आउट करने। रिस्क है भाई, रिस्क ज्यादा है। इससे इसके कंपैरिजन में तो रिस्क ज्यादा है ना। एक पेपर दूंगा, एक पर्टिकुलर पेपर दूंगा, और उसमें से तुमसे ये पूछूंगा, फाइंड द 10 क्वेश्चन दैट यू वुड लीव। सोल्व करना गया साइड में, वो 10 क्वेश्चन फाइंड आउट करके दिखाओ जो तुम लीव डाउन कर दोगे। यू हैव टू डेवलप दैट पर्टिकुलर थिंग ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो कीप दैट थिंग इन सर्कुलेशन इन योर माइंड कि अच्छा मुझे ऐसा ऐसा काम कुछ करना है। ओके, these are static, these are static. Okay, how about the 55th one? सर 55th में, सर 55th, हाँ, सर वो 50। मतलब मैंने, सर वो था तो ऐसे स्टैटिक, लेकिन मेरा जो फोर्थ ऑप्शन था वो लगा कि सही होगा, क्योंकि जानबूझ के दिया महापुराण, ऐसा मतलब लॉजिक, महापुराण दिया है तो होगा ही। महापुराण दिया है तो होगा ही। यस सर, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी या रिलीजियस टेक्स्ट में ये बिलोंग करते हैं महापुराण, तो इसी की वजह से अगर थोड़ा सा नहीं, ये पूछ रहा है ना, ये वाला जैन टेक्स्ट ये पूछ सब। रहा हाँ सर, जैन तो ये तो महापुराण सर लोग एलिमिनेट करेंगे कि वो हिंदू वाला होगा, तो इसलिए मैंने सर वो रखा। तो है। बाकी एक ओह, तो काउंटर इंट्यूटिव थॉट्स है। गुड। Sir, Avdan is like Buddhist word. दान, सर परिशिष्ट पर्वन। अच्छा दान, यू सेइंग अबाउट दान वर्ड। ठीक है, ये वाला दान ही कह It रहे हो had, ना? फिर ये आंसर में yes नहीं sir, मिला तो Avdan, क्या करोगे? like यहाँ तो एलिमिनेट हो जाएगा सर अवदान, क्योंकि पता है कि बुद्धिस्ट है, अच्छा तो ठीक थर्ड है, तो होगा नहीं। ठीक है। उसके अलावा थर्ड नहीं होगा तो बी someone ऑप्शन else, बचता है। if you can come something. सर परिशिष्ट पर्वन सेकंड ऑप्शन seems to be same. परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। सर Nothing much is माइक coming. इसमें
in my case I also eliminated third option. So उसमें मैंने ना लास्ट में जो प्रीफिक्स और सफिक्स है, जैसे यहाँ पर अवदान तो ठीक है, बट जैसे टका से एंड हो रहा है, तो बुद्धिस्ट जितने भी होते हैं, सुत्त पितक, विनय पितक, अवदान, शतक, लाइक लास्ट में जो टी ए के जो ये आ रहा है वर्ड एसोसिएशन, दैट इज हम्म मोस्टली एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट, सो आई एलिमिनेटेड थर्ड एंड फिर वहां से ऑप्शन बी पे आ गया था मैं. ठीक है. Yes, sir, me also. Anything which is left. Chalo, good. Now you people have some idea how other aspirants will be thinking. इसलिए पूछा था ये क्वेश्चन. ठीक है. कोई काउंटर उस पे जाएगा. ठीक है कि मैं रिवर्स करके कि वो ऐसा सोच रहा होगा तो मैं ऐसा सोचूंगा तो वो ऐसा सोचेगा. ठीक है. कोई इस पे जो हमने स्टैटिक पढ़ रखा है, अभिधम पितक सुता पितक और ये सब चीजें, उससे इस चीज का आइडिया निकलेगा कि किसी को इस चीज की वो होगी, किसी को इस चीज की होगी. तो पीपल विल कम अप विद डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स. देयर विल बी सम पीपल हु वोंट हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया अबाउट इट. ठीक है. 52 डिफिकल्ट वाला सेक्शन चला गया था तुम्हारे पास तो फिर एज होमवर्क. Once 52. सर 52 में ऐसे सर वेपन को ज्यादा मिडिवल इंडिया में उतना इम्फेसिस नहीं किया गया, तो वेपन मैंने सर ऐसे एलिमिनेट किया था, और ऑर्नामेंट्स भी वैसे ही किया था. बाकी सर दो में फंसा था. क्या बताया था इससे रिलेटेड, जो टर्म्स वगैरह से रिलेटेड कुछ बताया था? व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर थिंग? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगी ज्यादातर चीजें. मोस्टली. ठीक है. तो उससे थोड़ा सा चांसेस मिल सकते हैं. चलो, इट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. 61. अरे फिर से ना, इट्स करेक्ट. चलिए. 61. It is asking which of those statements above are correct. Let us come up with some more ideas, enhance our knowledge a little bit more, and try to see what we can come up with. Yes. ऑप्शन की अरेंजमेंट बिल्कुल सिंपल है. ठीक है. What could you think about it? The second option seems to be positive. Capital flight may. So, Capital. capital flight may increase the interest cost of firms. May increase means possibility. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowings. ठीक है. What else? सर इसमें सेकंड वाला ऑप्शन तो थोड़ा मुश्किल है, बट फर्स्ट इज जो मतलब चल भी रहा था उस टाइम पे और अब थोड़े पहले से भी, कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस हैज लेड टू कैपिटल फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, तो वो सही हो सकता है. एंड डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जनरली रिस्क को इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत होएगी. ठीक है. एक्चुअली यूपीएससी वाज आल्सो नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन कि So उन्होंने deleted, right? हाँ क्या दे दिया था, तो दे बेसिकली गॉट दिस क्वेश्चन रिमूव्ड. ठीक है. पर तुम्हारे सामने तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, हट गया तो इट्स ऑल गुड. नहीं तो प्लीज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस बिना किसी को डाउन करे. 62. हाँ ये ठीक है. 62. दिस इज समथिंग वेयर विल लर्न न्यू. क्या लग रहा है? इन जनरल ही पूछ रहा है वो कि टी प्रोड्यूसिंग good, स्टेट्स चलो. कौन से होंगे. ध्यान दिया किस वर्ड पे है सारा का सारा फोकस. जब ऐसे टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जब बोलते हैं ना, तो व्हाट योर माइंड विल थिंक ना, लेट्स
चेंज दैट अ पर्टिकुलर बिट, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सोचेगा कि वो हमसे मेजर प्रोड्यूसर और समथिंग पूछ रहा है ना। जब भी हम ये देखेंगे कि ये इसका प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो हमारा ध्यान ध्यान तो यहाँ जाएगा ना, मेजर प्रोडक्शन वहां पर होती होगी। लेकिन उसने कहाँ फोकस करा? उसने करा हाउ मेनी ऑफ द अबव जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जनरली नोन वेयर? भाई इफ समथिंग इज नोन इन वेस्ट बंगाल एरिया, तो एरियाज अराउंड वेस्ट बंगाल विल बी नोइंग इट। ठीक है। तो मान ली सदर्न स्टेट में पूछू कि यार उस चीज के बारे में बताना, तो वो तो उसके बारे में नहीं बताएंगे ना, वो तो अपने एरिया के बारे में बताएंगे उस चीज को लेकर। ठीक है। तो इट इज नॉट आस्किंग समथिंग इतना, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन को छोड़ दिया कि यार तुम जस्ट वैसे ही बता दो हाउ मेनी ऑफ द अबव जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है। एंड विद द कमिंग ऑफ द वेरियस टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एवरीथिंग, जो भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करके चीजों को करते हैं, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सी टी प्रोडक्शन गोइंग ऑन इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। उस एरिया में कर दो तो केरला इंक्लूड हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश अगेन हिली एरिया है। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट तो कैन टेक अप एनीथिंग टुवर्ड्स कल्टीवेशन। समझ आया तुमको ये वाला चीज? इसमें हमारा टोटल जो फोकस है कंप्लीटली, इट वाज ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। यार एक नॉर्मल एस्पिरेंट का ध्यान भी नहीं जाएगा इन चीजों पे कि यहाँ पर ध्यान लेकर जाना है, रेदर देन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दीज थिंग्स। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन आता है, अगर इफ यू आर हैविंग एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट मींस गेटिंग ऑल ऑफ देम। ठीक है। गेटिंग ऑल ऑफ देम could be one of the major choices that you can go with. Okay. ठीक है। लेट अस गो विथ 63। स्पीड भी बढ़ाते हैं थोड़ी सी। 63। Sir, credit rating agencies, SEBI, not RBI. इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है। सर एक एलिमिनेट हो जाएगा सर, ऑप्शन भी इसी तरीके से फ्लेम में। ठीक है। मान लो अगर ठीक है यहाँ ध्यान नहीं जाता है तो कुड देयर बी एनीथिंग एल्स वी कैन गो विद? सर इतना छोटा काम आरबीआई नहीं करेगा, किसी और को देगा। ओके। अगेन फिर हमारा उसी एरिया में है। कोई उसके अलावा कोई और इनपुट एरिया है जहां से हम इन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? एनी सजेशंस? ठीक है। अब तुम लोगों ने चीजें बताना शुरू कर दिया तो इट इज समथिंग गुड। इसके अलावा है क्या कुछ? बताओ भाई, अगर नहीं हो तो फिर वो देखते हैं। कोई बात नहीं, एलिमिनेशन वाले की तरफ ना जाओ तो या तो सही वाले की तरफ जा रहे हो, गलत वाले की तरफ जा रहे हो, डायरेक्ट वहां ध्यान नहीं गया है तो। इट इज सेइंग ब्रिक वर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है। अब एक थोड़ी सी अप्रोच सुनना, आंसर की तरफ नहीं लेकर जा रहा हूँ, बस एक अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है। उसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन के अंदर वेयर आर फोकस विल बी, दैट विल डिसाइड वेदर विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट। यस। जैसे इस वाले में था, जब हमारा फोकस यहाँ पर आया, वी वर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है। नहीं तो अगर हम कुछ और करते रहते तो हम वी वुड हैव कीप ऑन गोइंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग, गोल गोल घूमते रहते। अच्छा, जहाँ क्वेश्चन का जो फोकस होगा ना, वो हमारा आंसर को डिसाइड करेगा। इस स्टेटमेंट को देखो, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब मुझे एक नॉर्मल एस्पिरेंट के माइंड से बताओ, विल यूपीएससी वांट यू टू लर्न ऑल द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विच आर प्रेजेंट? फिर कौन सी इंडियन है कौन सी प्राइवेट है? वो चाहेगी तुम याद करो? नहीं। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तुमसे ये वाली चीज। तो ये बात याद रखना, दिस इज नॉट द फोकस एरिया। मेरा इस क्वेश्चन से एक टर्म है कि यूपीएससी की तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, कहाँ वो तुम्हारा फोकस लेकर जाना चाहते हैं। सही भी वही होगा और गलत भी वही होगा।
दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट नंबर 3 कैन नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, 3 से कुछ भी डिसाइड नहीं होने वाला है। थिंक अबाउट स्टेटमेंट नंबर 2। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सेम रूल अप्लाई होता है। ठीक है, वेदर इट इज अ पब्लिक लिमिटेड नॉन पब्लिक, ठीक है, चाहे इन्होंने एनजीओ खोली, हमें उससे क्या भाई, क्या मतलब उस पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, अगर डायरेक्ट ये ना पहुंच पाओ कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज RBI कंट्रोल करेगा नहीं करेगा, ठीक है, तो उसके अलावा ये एक तरीका है जिससे तुम फोकस एरिया तक आ सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द फोकस एरिया भाई। ठीक है, अपने फोकस एरिया को डेवलप कर लेना बहुत अच्छे से कि मेरे को ध्यान कहाँ पर देना है। फिर जिसको मैं मानता हूँ, अभी तुम बोलोगे नहीं कुछ, देर आर सम वोंट स्पीक कि यार क्रेडिट इनको कैसे पता है कि इट इज डन बाय RBI और समथिंग। ठीक है ना, तो मान लो तुमको वो नहीं पता है उस चीज के, तो लॉजिकल वे से लेना उसको शुरू कर दो। ठीक है, कि जो क्रेडिट रेटिंग्स दे रही हैं, अगर उनको कंट्रोल करने वाला यही बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है, यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कर रहा है, ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है और ये इसको कंट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो दिखाई दे रहा है वर्क फ्लो का पूरा। ठीक है, तो अगर इनकी, अगर उसको वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो ये इनको ये नहीं बोल देगा कि जाओ उनको अच्छे से रेटिंग एजेंसी देना शुरू कर दो। हम्म, तो कहीं ना कहीं वहां भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो यू कैन गो विद दोज पर्टिकुलर थिंग्स एज वेल, उनके साथ भी जा सकते हो अगर एक लॉजिक पर जाना हो। बट इस क्वेश्चन का जो मेजर चीज जो लर्निंग के लिए थी वो था टू डेवलप द फोकस एरिया वेर UPSC इज फोकसिंग। ठीक है, अगर तुम्हारा भी वही ध्यान है जहाँ UPSC का ध्यान है, इट मीन्स यू आर देयर। विद रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये रिपीटिशन पे है, चलो पर कोई नहीं। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ब्यूरो ऑप्शन के अरेंजमेंट सिंपल वाली है, ठीक है, करेक्ट इस बार यहाँ दे रखा है। हम्म, यस, स्टैटिक को छोड़ के वैसे बताओ, एंट्री पॉइंट लो क्वेश्चन के अंदर। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स तो जनरल हैं। सेकंड में वो बोल रहा है कि इट रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन, और थर्ड में हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। ठीक है, अगर वो उसके हेड्स को सिलेक्शन में हेल्प करेगा और रिकमेंडेशंस में हेल्प कर रहा है, तो वो इस चीज में हेल्प कर सकता है। ठीक है, दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स भाई जहां पर हम ध्यान दे सकते हैं। दीज टू आर बीइंग ग्रुप्ड टुगेदर, वेरी गुड। अदर देन दिस, ये क्या आ गया, द गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। Sir, if governor of RBI and chairman of BBB is same, then there would be this partiality and all. So it won't be same. Again, he will be appointing, he will be going with what भाई, बाकी हर बैंक के अ, मान ले इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो में आ गए, तो ये सभी बैंक्स के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इनके हेड पे कंट्रोल करना शुरू कर देगा। Yes, sir. इजी पीजी, फिर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना बाय वन सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, थिंक, स्टार्ट थिंकिंग। उसके बाद एक चीज और करेंगे, हाँ, लास्ट की 20 मिनट्स में। 65, लेट्स सी इफ वी कैन गो विद दिस बट अरे क्या क्या कुछ स्टूडेंट्स का पता है क्या होता है वहां पर इसमें, कि जैसे इस टाइप की कोई चीज देखते हैं ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ये सब चीजें, तो ये नॉर्मल यू नो स्किप करते चलते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट भी नहीं होती ना इनको पढ़ा जाता है। अपने नॉर्मल दिमाग से सोचो क्या हो सकता है। हाँ, बट ये याद रखना, ऑप्शंस की जो अरेंजमेंट है, दैट इज नॉट यूजुअल, इट इज द ट्विन प्रॉब्लम वन। थिंक, आंसर,
सोचो और बताओ। हम्म। So first option seems to be right. Okay, and how it seems to be right? There is already an option to exchange, so it can be low rate of interest also. Okay, ठीक है. What other than that? As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. ठीक है, not many will get this particular line. Other than that, हाँ भाई बताइए. सर सेकंड स्टेटमेंट ना पॉजिटिव लग रही है. द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड अ बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में ऐसा कुछ हमने उसमें भी पढ़ा था ना, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स में भी. हम्म, कि वो हेल्प करेगा उस चीज में इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में. तो इट सीम्स पॉजिटिव और सही हो सकती है ये वाली स्टेटमेंट. भाई बाकी कितनों को ये पॉजिटिव नजर आ रही है ये वाली चीज, वो भी देख लो. नहीं आ रही तो फिर वो बताओ. बोलो. सर नहीं आती. देखो उसमें क्या देने लग रहा है. एक तो जब हमारे सामने ये पूरा का पूरा वर्ड दे रखा है, ठीक है, इस वर्ड में बॉन्ड को रख दो एक्स वाई जेड कुछ भी, ये क्या है? कन्वर्टिबल है. समथिंग कैन बी कन्वर्टेड. ठीक है, मैं तो बिल्कुल वो फिफ्थ क्लास के उससे चलेंगे. ठीक है. एज देर इज एन एज देर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, ये हमारे पास ऑप्शन है कि बॉन्ड को हम किस में कन्वर्शन किस में चल रहा है, बॉन्ड एंड इक्विटी में चल रहा है. कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. अब तो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज सोच के देख, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज सोच के देख, यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स समथिंग विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट या लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम इस टाइप की चीजों की बात करते हैं तो हमारा एक एक बेसिक जो वो है ना, कि यार कंज्यूमर को जो वो काम करने लग रहा है उन सब का क्या होना चाहिए उस चीज में, दे शुड बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. ठीक है. थोड़ा सा लेवल अप करके सोच है, बट ठीक है, वी कैन ऑलवेज ट्राई ना. इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन. द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी. ठीक है. अगर हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर. बॉन्ड होल्डर के पास क्या है, अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन एक्स वाई जेड टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस. ठीक है. कि कहीं ना कहीं उस बॉन्ड होल्डर को ना यहाँ पर किससे थोड़ा सा वो मिल रहा है, राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस से उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी उस एरिया में. ठीक है. हम हमेशा कंज्यूमर को, अब हम इस बॉन्ड होल्डर को कंज्यूमर ही तो लेकर चलेंगे एक प्रकार से. ये तो हमारे लिए नॉर्मल पब्लिक है ना. ये बॉन्ड होल्डर कौन है, ये हमारे लिए एक नॉर्मल पब्लिक है. नॉर्मल पब्लिक को हम किस चीज से बचा के फिरते हैं, राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस से. वो जहां पर भी इन्वेस्ट करता है कुछ और करता है, उसको हमेशा किस चीज से बचना होता है, राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस से, कि चीजों का रेट ना बढ़ जाए बस कैसे भी करके. आराम से इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना एंड ट्राई टू थिंक इट इन द पॉजिटिव सेंस. एक बार सीड ऑफ थॉट दिमाग में आ जाएगा तो न्यू उसमें से अपने आप ग्रोथ होने लगती है. ठीक है. डोंट स्ट्रेस ओवर इट. 100 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है. ठीक है. इतना भी वो नहीं होना है उस चीज पे. 66. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव. ऑप्शंस की अरेंजमेंट ऊपर नीचे है तो लुक इनटू इट. यस. 1 2. अरे आंसर पता नहीं लगे. आंसर मतलब ये बताओ कि देख, ये एंट्री पॉइंट है इस क्वेश्चन का. एस सी होगा नहीं है.
फिर तो एससीओ का नहीं है। क्योंकि ये इस्लामिस्ट ग्रुप नेशन है तो इंडिया नहीं है इसका। कौन कौन है इस्लामिस्ट वाला, बताइए हमें। शंघाई वाला। शंघाई ग्रुप, हाँ। हाँ। मैं इस इस्लामिस्ट कैसे है ये? शंघाई वो चाइना का है, इंडिया पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन करा है। है सर, मेंबर है। ऐसा कुछ नहीं है इस्लामिस्ट। अरे वो सर तो उसको एमटीसीआर वैसे का कहते तो है, हैं। ये तो बहुत मतलब चर्चा में रहता है। ठीक है। वो कुछ और रहेगा होगा प्रीति दिमाग में। हम्म। किसका? एमटीसीआर का, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। यस सर। ठीक है। और व्हाट अबाउट दिस? इसका एशियन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। Yes, sir, member है। इसका भी है सर। हाँ तो यहाँ से शुरू करो ना गिनती को, यहाँ से शुरू करो। ठीक है। दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द एशियाज, काइंड ऑफ द मेजर इकोनॉमी। ठीक है। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पार्ट होगा, नहीं होगा? मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में नहीं, अगर इंडिया नहीं हुई तो फिर कौन होने वाला है? अरे बैंक में तुमको शेयर होल्डिंग के नाम पे कोई पैसे वाले भी तो कंट्रीज चाहिए, चाइना है, कुछ और है, तो वो सब आपको चाहिए ना। अगर इंडिया एशियन वाले का ही पार्ट नहीं होगा, फिर किसका होगा? नथिंग कम्स इन यस टू सर। द माइंड। तो ये तो हम लेकर चलेंगे। जब ये लेकर चलेंगे तो ये ले, हमें एमटीसीआर पे ध्यान ही नहीं देना। एंड दिस इज अ कैजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है। लेकिन उसकी तरफ मैं फिर भी नहीं जा रहा हूँ कि उसका पार्ट है या नहीं है। बट अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि क्लास फिफ्थ की तरह कि अच्छा ये इसका पार्ट है, ये दोनों पे पहुंच गया हम। वो ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन का फॉर्मेट है, ये भी दे सकते थे ना। उस 2 घंटे में जितना माइंड तुम्हारा लाइवली स्पार्क करेगा ना, उतना ही ज्यादा वो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करेगा। ठीक है। पीपल, वाइल रीडिंग द क्वेश्चन दे इवन फॉरगेट टू ब्रीथ प्रॉपरली। ऑक्सीजन जा नहीं रहा होता दिमाग में, कुछ कुछ आता रहता है और बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद उनकी एक ही लाइन होती है, कभी नोटिस करना, कर दिया यार पता नहीं कैसा था। बाद में ही समझ में आता है, अरे यार ये क्वेश्चन तो कितना आसान था, ये तो किया जा सकता था। भाई वहां भी तो तेरे सामने सेम क्वेश्चन था, वहां पर सेम थॉट क्यों नहीं आया तेरे दिमाग में? वो इसलिए नहीं आया बिकॉज योर माइंड वॉज नॉट फुली फंक्शनल। एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, तुम्हारा दिमाग ऐसे होना चाहिए कि लाइक इट्स बर्निंग हॉट की फुल स्पीड पे वो काम करने लग रहा है। ठीक है। एंड आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड जस्ट बिकॉज सो दैट इट स्टार्ट्स टू रिवॉल्व इन दैट मैनर। 67 को करते हैं। देख, साइज इंक्रीज हो गया, चांसेस इंक्रीज है हमारे इसको करने के। लेकिन ऑप्शंस को देखो कैसे हैं। 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं और 5 में से एक के पास ही मैक्सिमम जो है वो 3 दे रखे। इट मींस इट मींस दो तो गलत मिलने के पूरे चांसेस हैं, 3 भी गलत मिल सकते हैं। तो गलतियां ढूंढने के जो स्कोप एरियाज है वो ज्यादा है। चलो उनको फाइंड आउट करते हैं। बताओ तो जरा, इसमें बताओ भाई, इसमें पार्टिसिपेट करो और बताओ। प्रीति, बैक ऑनलाइन। सर फिफ्थ वन इज रॉन्ग, जिसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। वियतनाम और हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है सर, और प्लस इसको मेजर करने का एक वो भी कोई क्वांटिफाइबल नहीं है ये चीज़। मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का जो सेक्टर है वो है। और एरिया पता है कौन सा है? एरिया कौन सा है? इंडो पैसिफिक रीजन। दुनिया की 70% ऑफ द मेजर वोल्केनोज, अर्थक्वेक, वो सब भी इसी एरिया में भी आ जाएंगे, और कंट्रीज भी इसी एरिया में आ जाएंगी। ठीक है। उनमें से वियतनाम इज कमिंग अप। तो चलो, ठीक है। एक सर पर्सनली हम ठीक कर सकते हैं। वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स। ओपन छोड़ रखी है। हम्म, क्या कह रहा है वो? हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट
growing. Yes. And in the recent year, what is this recent year? Is it 2010 to 2020 or it is 2000 to 2020? We don't know about it. ओपन लीव आउट कर रखा है, ठीक है, चलो ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और बताओ, और कहां पर तुम्हारा ध्यान जा सकता है इसमें? इसमें थर्ड सर स्टेटमेंट भी सिंपल ही है। Vietnam's economic growth is linked to its integration with global supply chains and focus on exports. अगेन ओपन स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, आइडेंटिफिकेशन। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो थोड़ा लेसर नोन फैक्ट है, मतलब तो हम क्या बोलेंगे इसको? जरूरी नहीं है, वो फोकस एरिया नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, ये हमारा फोकस एरिया नहीं हो सकता। वेदर वी वी वोंट बी नोइंग अबाउट मल्टीपल कंट्रीज और वो किन पॉलिटिकल सिस्टम से डील करते हैं। वी आर मोस्टली कंसर्न विद यूएसए, ठीक है, फ्रांस, यूके। कंपैरिजन करना होता तो हम इन कंट्रीज के साथ करते हैं, ठीक है, एंड नॉट विद दीज Sir, कंट्रीज। fourth option also seems to be positive. Generalized one. For a long time, Vietnam's low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturers. फिफ्थ को रिमूव करें कंप्लीटली। फोर कौन सा था हमारे पास? सेकंड वन को हैज टू रिमूव कर वन सकते। हैज टू बी इन द आंसर ना? नहीं, रिमूवल वाला बाद में, मतलब सेकंड, आंसर में कौन सा आ सकता है? फर्स्ट आ क्योंकि सकता इसका है। श्योर नहीं है ना इसका, एक तो ओके, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बस हमारा फोकस नहीं है इसके ऊपर। तो फोकस वाले को हम छोड़ देंगे बाकियों के ऊपर, कि वो डिसाइड करेंगे वेदर इट विल बी पार्ट ऑफ द आंसर और नॉट। अब इसका फर्स्ट आंसर हो सकता है, तो वी आर लेफ्ट विद दिस टू पर्टिकुलर थिंग, 1 3 4 एंड 1 एंड 2। अब किस पे डिपेंड करता है? अब या तो, अब देखो, अब मेरी बात समझना, अब या तो 2 ठीक होगा या 3 और 4 ठीक होगा। किसके साथ जाओगे? तुम्हें किस पे ज्यादा भरोसा हो सकता है? और 3 और 4 में भी मैं तो ये बोल सकता हूँ कि ठीक है, ये भी ओपन, उसने ओपन छोड़ रखी है, ठीक है, ये भी ओपन छोड़ रखी है, ये बिल्कुल एक क्लोज्ड फैक्ट है। तुम किसकी तरफ जाना चाहोगे, ओपन स्टेटमेंट या क्लोज्ड फैक्ट? ओपन स्टेटमेंट। ओपन Open स्टेटमेंट। हाँ, तो उसके साथ जाओ तो आंसर तक आ जाओगे इजीली। नॉट नोइंग अबाउट वियतनाम इवन, सम ऑफ अस, हमें हमें सबको आइडिया होगा कि कहाँ पर लोकेटेड है वो, है। तो इट डजेंट मैटर whether earth is at the center of the universe or sun is at the center, or there is something other than that. We don't care about it as long as the question is solved. Okay, 68. तो डायरेक्टली आंसर डी। In which of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? ठीक है, अकेला कंट्रोल कर रहा है पैसे को, nothing much. 69. With reference to fungible tokens (NFTs), consider the following statements. Which of the above are correct? तुम प्लीज अगर इसमें से कुछ, ये अगर तुमने कभी अगर मॉक टेस्ट करे हो या पीवाईक्यूज अगर तुमने दी हो, एंड दिस वाज वन ऑफ द थिंग कि तुम्हें आके पता चला ओहो करेक्ट लिख रखा है, इनकरेक्ट लिख रखा है, दिस इज हाउ यू शुड मूव विद द क्वेश्चन। इवन बिफोर रीडिंग द स्टेटमेंट, go with this, look at the option format and then come to this particular area। हाँ भाई, ठीक है, चलो करेक्ट बताने हैं। They enable the digital representation of physical assets, ठीक है, NFTs। They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain। बताइए, इन दे सर दो एक हाई बार पजल के अंदर। पॉसिबिलिटी ऑफ 2 and 3। फर्स्ट वाली थोड़ी सी वैसी है। सर थर्ड वाली मुझे वो लग रही है, बिकॉज उसका नाम ही है नॉन फंजिबल टोकन। तो जो चीज़ नॉन फंजिबल है, फंजिबल का अगर हम हिंदी मीनिंग भी देख लेंगे एक बार पेपर में, सो इट वुड बी लाइक कर नहीं सकते उसको एक्सचेंज और ट्रेड। ओके, और भाई, और तुमने क्या बताया था अभी?
हाईली प्रोबेबिलिटी किसकी? सेकंड एंड थर्ड। एक को एक टाइम पे डील करो ना, ऑलवेज डील वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स, ठीक है, थोड़ा सा मैच कर रहा है, दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, ठीक है। एनीथिंग एल्स अदर देन दिस? इसके अलावा कुछ जो तुम्हारा आइडिया लगता हो इस चीज को लेकर? है दिस इज अबाउट यार डिस्कशन एंड एवरीथिंग, कहाँ तुम बिल्कुल शांत होके बैठे हो? देर आर वेरी फ्यू। सर पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट होगा सर, कैसे? कि सर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है फिजिकल एसेट्स का। हमें कैसे पता चलेगा? तो पढ़ने के बाद तो पता चल जाएगा, वैसे कोई तरीका है इसको पता करने का? नहीं तो रूल्स मत तोड़ो भाई, अभी तो एकदम से क्लास फिर से एकदम एस्पिरेंट वापस बन जाते हो। रूल्स नहीं तोड़ने। यहाँ तक आ गया यार इतने क्वेश्चन करते करते, जस्ट बाय हैविंग सम आइडियाज। सर सेकंड वाला भी यूनिक टोकन्स लिखा हुआ है सर, ऐसे एनएफटीज है तो कुछ यूनिक टोकन्स होंगे। ठीक है, इनपुट वाले दो एरियाज थे, दो पे तो देख पता चल सकता है। अब वो मुझे नहीं पता वेदर यू विल बी एग्रीइंग विद दैट और नॉट। एनएफटी वाला है, ठीक है, हमको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या पर्टिकुलर चीज है, ना हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, ठीक है। दूसरा उसके बाद कि लाइक दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। इस स्टेटमेंट को मैं सिर्फ इसलिए लेना चाहूंगा, इंक्लूड करना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज इट इज मोर टुवर्ड्स एवरीथिंग इज गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सिर्फ इस वजह से, और इसका कोई वजह नहीं कि दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, ठीक है। इट मीन समथिंग इज ऑन ब्लॉकचेन, इट इज सिक्योर्ड, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, पीपल का उसके ऊपर कंट्रोल है, पीपल कैन क्रिएट इट, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा इससे एक बार ये आइडिया लग सकता है। जैसे अभी तुमने एक ये आइडिया है ना कि मान लो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में आरबीआई आता है ना। फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। फिर ब्लॉकचेन आएगा ना, तो इट मींस इट इज रिलेटेड विद द न्यू टेक्नोलॉजीज विच इज कमिंग अप, इट इज सिक्योर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। दीज आर रिलेटेड एरियाज, दीज आर रिलेटेड एरियाज, ये इनके गलत होने के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं। मैं नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा हूँ, सपोज ये वो वाली बात होगी, मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये वो वाली बात होगी कि मैं एक नई वेबसाइट या ऐप लेकर आ रहा हूँ और उसमें एआई इंटीग्रेटेड नहीं है। अभी क्या मतलब, हर चीज में सबको क्या चाहिए, तो एवरी वन इज पुटिंग, चाहे किसी भी लेवल का हो, देर इज एआई इंटीग्रेशन विच इज गोइंग ऑन एट सम और द अदर लेवल, है ना। तो वो इंटीग्रेशन वो एआई से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ब्लॉकचेन सिक्योर न्यू कमिंग अप ऑफ थिंग्स उससे जुड़ा हुआ है, तो दिस इज वन थिंग, दिस इज समथिंग मोर, एक एक्सट्रीम सी बात हो गई। अब क्या सोचना है, इतना आइडिया है कि ब्लॉकचेन से ये बिटकॉइन वगैरह ये सब इजीली अटैच्ड है, ये सब इस पे फंक्शन करते हैं, इसका इतना आइडिया है। आइडिया हो तो ही आगे स्टेटमेंट पे बढ़ो फिर। अगर इस चीज का आइडिया है, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड, एंड देयरफॉर, यहां तक तो बात समझ में आ रही थी, कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी, लेकिन फिर उसने इस चीज को बिल्कुल पक्का करके कह रहा है, एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। हम बिटकॉइन को ही ढंग से नहीं लेकर आ रहे। हम्म, समझ रहे हो इस चीज को, हम उसको ही नहीं Yes, sir. लेकर आ रहे, और यहाँ पर हम इस चीज को कमर्शियल ट्रांजैक्शन में डील करने के लिए इसके साथ बात कर, थोड़ा सा हाई होगा, बट यस वी कैन, सारे इजी तो नहीं होंगे पेपर में, इवन इफ यू आर गोइंग विद टिप्स एंड ट्रिक्स, so there will be some question which will be a little bit more unusual than others, but still we have to work with them, सीख रहे हैं हम।
तो ऑप्शन के अरेंजमेंट की वजह से वो थर्ड स्टेटमेंट हमको जो है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हेल्प कर देगी 70th में. This is good. We have some reservoirs, we have some states, and it is not correctly matched. अब एक बात याद रखना, there will be some things जो तुम्हें एक एक स्टेप अहेड रखेंगे नॉर्मल पॉपुलेशन से, और वो एक सिंपल सी थॉट है. वो थॉट बता देता हूं क्या है. Suppose there is a long list of 50 items in front of you. This is a long list of 50 items in front of you. And I'll tell you that there is only 1% chance that इनमें से मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लूं. क्या तुम इसको पढ़ोगे? No. You'll be like No, sir. इनपुट आउटपुट खराब हो जाएगा, क्यों करना है ना? लेकिन what if I tell you that this could make a difference? This could make a difference कैसे? आप इसको ब्रेक डाउन कर लो. आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया. ब्रेक डाउन में आपको पता नहीं चलेगा ऐसा हो गया. ब्रेकडाउन में आपको पता नहीं चलेगा कि आपने उसको पूरा कर लिया. आपने यहाँ पर डैम्स लिख लिया, रिजर्वोयर्स लिख लिए और उनके स्टेट्स लिख लिए. मैं कहता हूं एक को एक टाइम पे डील करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या करना है. ठीक है, आपने इसको कर लिया, डैम्स एंड रिवर्स को कर लिया, आपने रामसर साइट्स को कर लिया, नेशनल पार्क्स को कर लिया, रिवर्स, ग्लेशियर्स. आप ऐसे ना करते चले गए डेली के डेली, एज ए फन फैक्ट और एनसाइक्लोपीडिया टाइप. आप इन चीजों को करते चले गए, and they will come up in this particular format in front of you. These questions, trust me, will create a kind of a difference you'll never regret. इनपुट आउटपुट जब लगेगा, इनपुट आउटपुट रेशियो जब खराब होगी, जब तुम इसको सबको एक साथ करने बैठ जाओगे, they will waste your time. ना याद होगा ना कुछ और होगा. Yesterday I came through this very peculiar thing. मतलब सुन के ना ऐसा लगा एकदम से कि यार ये भी हो रहा है. मतलब पीपल आर थिंकिंग टू दिस लेवल, और वो है भी इसी चीज से रिलेटेड. तो एक बार उस चीज को डिस्कस कर लेता हूँ. बड़ा ही सही है. किसी और ने देखा हो ना तो बताना यार उस चीज को, कि दैट देयर इज दिस पर्टिकुलर पार्लियामेंट और समथिंग. ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, और उसके अंदर देर आर 140 सीट्स. ध्यान से सुनना बड़ा है, ठीक है. एंड देर इज दिस लीडर who wants to control this parliament of 140 people. So please tell me how many seats for majority he will require to have. कितनी चाहिए उसको? 71. 71. तो हमने यहाँ पे 71 सीट्स लिख दिया. अब इस पर्सन को, विच इज दिस लीडर, इसको कितनी सीट्स रिक्वायर है? 71. ठीक है. अब देखो ये क्या गेम क्या खेलता है वो समझो. इसने इस पूरी असेंबली को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये बोला कि 20 ईच के हिसाब से आप सब, मैं आपको कमिटीज में डिवाइड करता हूं. 20 20 20 20 20 एंड वन मोर 20. कर दिया डिवाइड, पूरी असेंबली को डिवाइड कर दिया. फिर उसने बोला कि एक कमेटी की वोट की वैल्यू 1 होगी. एक कमेटी की वोट की वैल्यू 1 होगी. ठीक. तो इस 20 में मेजोरिटी अगर चाहिए तो कितनी है? 11. 11. अगर इन सब की वैल्यू देखोगे तो क्या है? 1. सबकी एक एक वैल्यू है. अब उसको इस पूरे के लिए, ठीक है, अब समझना, इसमें एक की वैल्यू 1 है और एक कमेटी में जीतने के लिए कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है? 11 की. यस और नो? 11 की अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ भी 11 वोट चाहिए, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, 11 11 11 और 11. अब तुम कहोगे सर ये यहाँ भी 11 चाहिए, 11 चाहिए, ये तो 77 हो गया, तो पहले वाले से भी गड़बड़ हो गया काम. नहीं, द वर्क डजंट एंड हियर. हर कमेटी की वोट की वैल्यू 1 है. टोटल 7 कमेटी है, 7 में से
मेजोरिटी कितने पे है? 4 4 पे। हम्म अरे 11 11 11 तो 44 पे आ गया। हम्म अब ये सिर्फ 44 वोट से, सिर्फ 44 वोट से इस पूरी 140 को कंट्रोल कर सकता हम्म है। इट इज हाउ वी ट्रीट द प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ वी ट्रीट दी प्रॉब्लम। तो जो भी तुम्हारे सामने जो भी पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, ब्रेक इट डाउन। ब्रेकिंग डाउन ऑलवेज हेल्प। ब्रिटिश के लिए काम करा था। दीज ब्रिटिशर्स आर नेवर रोंग विद दीज थिंग्स। तो तुम्हारी इन पर्टिकुलर चीजों के लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगा। प्लीज डोंट बी अफ्रेड बाय लर्निंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग, बट आपको उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। रामसर साइट्स रीड करी थी, दैट वाज नंबर वन थिंग। डैम्स को पिकअप करना, स्टेट्स को पिकअप करना, प्लस इसके साथ एक और चीज पिकअप करना, दैट इज रिवर्स। तो वी हैव डैम्स, वी हैव स्टेट्स, वी हैव रिवर्स। ठीक है, राइट इट डाउन। बाय इवनिंग 9 p.m. आई विल बी क्रिएटिंग दैट डेक फॉर दिस। मैं इसके लिए फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर दूंगा। आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप, गो टू द वेबसाइट, गो टू द फ्लैश कार्ड सेक्शन, ठीक है, एंड ट्राई लर्निंग देन फ्रॉम देयर एज वेल। ठीक है, तो हम इस चीज को अभी के लिए ड्रॉप करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। 2 मिनट है, 5 क्वेश्चन और करते हैं स्पीड से। याद रखना भाई इस वाली बात को। डोंट इवन थिंक कि इनपुट आउटपुट खराब होगा। इनपुट आउटपुट जब खराब होता है जब हम उसको कंबाइंड देख रहे हैं। ओके, 71। In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments, layoffs in factory, employing workers? Compiles the information. लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो। ओके, कोई डिलीशन का मेथड है इसमें जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज को लेकर? बेसिकली तो वन का CSO तो लेबर ब्यूरो ही डील करता है। ठीक है, काइंड ऑफ देखो है भी थोड़ा सा स्टैटिक सा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि दैट वी हैव समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, बट कुछ चीजें हो सकती हैं जिससे एटलीस्ट एक या दो कर सकते हैं। कोई है ऐसे मतलब जिसको फाइंड आउट कर सकते हो कि यार ये डिलीट हो सकता सर DPIIT डिलीट हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का वो है। इट इज नॉट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर। वो ट्रेड का और कॉमर्स का चीजें देखेगा हमेशा, है? मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है the ना? कॉमर्स। first option, CSO can also be eliminated. CSO कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। ठीक है, देन अगर तुम्हारी तरफ से 2 एलिमिनेट हुए, मेरी तरफ से इसको कर लो, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट टेक्निकल मैन पावर। टेक्निकल मैन पावर इन्फॉर्मेशन, राइट। Yes, sir. बाकी इंफॉर्मेशन। वर्कर्स कहाँ जाएंगे, है ना? बिल्कुल। तो वहां से वो उठ जाएगा। तो फिर हमको इकट्ठे बैठना पड़ेगा पेपर में। 72। In India, what is the role of coal controllers organization? ठीक है, it has something to do with coal। ऑप्शन बी अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज्ड अप है, तो वी कैन ऑलवेज गो विद दैट। बताइए, कोई इनपुट हो सकता है किसी एरिया में जहां से एंट्री मिल सकती हो? हाँ भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट is saying कि it is a major source of coal statistics. हम्म। It might be true. वो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं उसके पास। ओके, ठीक है, माइट बी ट्रू। अपने इनका भाई ये जब जैसे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपना ये सिस्टम देख लेना, कहाँ सर्कल लगता है, किस पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगता है, ये तुम्हारा खुद की कोडिंग है। ठीक है, ये आप लोगों की खुद की कोडिंग है कि आप क्या करते हो, वहां पर जाकर कुछ नया ट्राई मत करने लग जाना। चलिए,
सर फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो सकती है, वो एंड It यूजर ensures that coal mining करें। companies deliver the coal to end users in a prescribed time. Okay, तो ठीक कुछ है। ज्यादा इलेक्ट्रिक हो जाएगा सर। मतलब गलत की तरफ तुम्हारा इसका वो जाने लग रहा है ना। यस सर। Sir, second is correct. और वैसे ये देखो यार, हमने आज तक ना Monitors. मतलब चीजों को अपनी कंट्री में अगर हम बात करें, देखो देख कहाँ से कहाँ पर किस थॉट को कनेक्ट करा जाएगा उस लेवल को एक बार देखने की कोशिश करना। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है भाई, इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, उसके बाद फाइन वगैरह लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एक पिज्जा आ गया जिसके डिलीवरी टाइम पे वो सब है, ठीक है, ये नई नई जेप्टो वगैरह ये सब आ गए। उसके अलावा क्या है, टाइम डिलीवरी, प्रिस्क्राइब टाइम और ये सब चीजें जो है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्या, इसमें ए फोर्थ स्टेटमेंट में हम ये चीज बोल सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स इज अ मेजर मतलब प्रॉब्लम इन इंडिया, उसको मैनेज करना लॉजिस्टिक्स को। मैनेज करना। एंड अगेन, व्हाट इफ द कोल माइनिंग कंपनीज आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट अमाउंट ऑफ कोल। वी हम्म हियर इन न्यूज कि भाई कोल की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई, अब कहाँ से तुम इसको ये सारी चीजें करोगे, ठीक है। तो यहाँ मतलब कहीं ना डाउट क्रिएट हो रहा है। आई एम सेइंग कि यहाँ पर डाउट क्रिएट हो रहा है, और जब एक स्टेटमेंट में डाउट क्रिएट होगा ना, तो माइंड विल फंक्शन टू उसके और डाउट्स लेकर आएगा। तो ठीक है, वी कैन लाइक जब दो तीन डाउट हो गए तो वी कैन गेट रिड ऑफ इट। नाउ वन एंड टू, वन एंड टू, ठीक है। इट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल और द लिग्नाइट ब्लॉक्स। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में it hears any objection It to seems to be government true. to the सर government's notification relating any to acquisition of objection coal कुछ bearing लिस्ट area. ऑफ ऑब्जेक्शंस होनी चाहिए ना। It hears any objection. Sir, any objection seems to be vague. हाँ, वेग है, मतलब थोड़ी सी ओपन अप कर रखी है ना इस चीज को। हमेशा तुम्हें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना है कि इसमें गलत क्या हो सकता है। अगर वो गलत नहीं मिल रहा तो मतलब वो ठीक है। एज द इंडियन डिटेक्टिव मूवी से कि झूठ को पकड़ लो, अगर झूठ नहीं है तो सच है, ठीक है। तो दैट इज ट्रू फॉर दिस केस एज वेल। 73, दो क्वेश्चन और। चलो चलो चलो। इसमें लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज तो नहीं होगा। सर सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। C state. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो इफ अ कॉन्स्टिट्यूशन में ही पर्टिकुलर एरिया मेंशन है। फिफ्थ में लेकर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। सी है ना, ठीक है। D फिफ्थ शेड्यूल, also. द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है ना। Yes. ऐसा नहीं। Yes, it's true. दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ, sorry, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। आप किसी चीज को वो कर देते हो एंड इट ब्रिंग्स अप अ लोकल सेल्फ, ये तो हम अलग से नहीं लेकर आए हैं फिर। 73rd Yes, से। sir. Pesa. 23rd से लेते हैं। This would prevent the transfer of land of tribal to non-tribal. Seems to be यहाँ पे इस चीज को ना ट्रांसफर की बजाय ना ये ट्रांसफर पे ध्यान दोगे तो शक रहेगा। अगर इस चीज पे ध्यान दोगे कि दैट दिस इज रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ दीज पीपल, एंड इतना हम पता करके जाएंगे कि फिफ्थ जो शेड्यूल है वो इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपके पास से जमीन ही अगर चली जाएगी तो यू आर डन विद एवरीथिंग एल्स, राइट। यस। ठीक है। ओके, 74। फिफ्थ में तो इट्स कंप्लीटली, उसने तो सोच ही रखा था गलत कर पाऊंगा। 74th, द इंडियन सैनिटेशन कोalition इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन, ठीक है, करो। इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। आज तक तो एडवाइस देता था, अभी एकदम से पैसा भी दे रहा है। इट इज फंडेड बाय मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट फंड,
दे गिव रिकमेंडेशन, दे गिव डेटा, दे प्रोवाइड यू विद अ लिस्ट, कौन टॉपर बना है, कौन लास्ट आया है, ऐसी टाइप की वो चीजें करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट ये सब चीजें। नोट फंडिंग वाला पार्ट उनका थोड़ा सा क्या है, लेवल उसका डाउन है। ठीक है, तो जब भी ऐसी चीजें आएंगी तुम्हारे सामने तो थोड़ा सा इस फंडेड वाले पार्ट पे तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, एंड जब स्टडी भी कर रहे हो ना तब भी इस चीज को देखा करो। जैसे नोट्स होते हैं हमारे सामने, उन नोट्स में से एक स्टूडेंट का जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना वो ये रहता है, भाई इसमें से पढ़ना क्या है। भाई पढ़ना वो है जो क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, ओके। अब तुम ये अब तुम प्रीलिम्स को प्रीलिम्स के उससे भी मत देखा करो। यहाँ पर ना थोड़ा सा ये भी देख लिया करो, ये कोई मेजर्स लिख रखे हैं। आपको इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो आपको सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए क्या हमें इंडियन सैनिटेशन कोalition को और ज्यादा रोबस्ट फ्रेमवर्क के साथ मूव ऑन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से इस चीज को उठाओ, इंडियन सैनिटेशन कोalition को, कि हम इसका जो बेस है वो मोर ब्रॉड बेस करें, इसको ज्यादा कंट्रीज को, ज्यादा लोगों को, एनजीओज को इन्वॉल्व करें, ज्यादा स्टेक होल्डर्स को इस चीज के अंदर इन्वॉल्व करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। नॉट मेनी आंसर्स यू विल फाइंड जहां पर ये बातें लिख रखी होंगी। ठीक है, तो हैव दैट व्यू पॉइंट एज वेल। ऐसा दिमाग है स्पंज की तरह, जहां से जो भी मिले कीप ऑन ग्रैबिंग इट। तो थोड़ा सा शक है फंडेड की वजह से। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स is an apex body of this particular ministry and provides innovative solution to address the challenges of urban India. सर ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली कैटेगरी में है। उसमें हो सकते हैं बिल्कुल। और जनरली मिनिस्ट्रीज को गलत ही देता है वो। तो वो भी एक पॉइंट आ सकता है हमारा। तो कहीं ना कहीं वो शक वाले में ऐसे करके, मैं एक्चुअली में बताऊं, जब इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करोगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ करके तुम आगे की तरफ आ जाओगे, कि या तो इसकी तरफ ध्यान जाएगा। एक चीज पक्का रहेगी, वो ये रहेगी कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये होता ना तो तुम इसको इजीली रीड कर पाते, तुम इतना रुक रुक के इसको रीड नहीं करोगे। देयर विल बी अ श्योरिटी दैट बोथ 1 and 2 कैनॉट बी करेक्ट। ठीक है, इसकी तरफ थोड़ा सा तुम्हारा ध्यान रहेगा, यहां पर भी बात जा सकती है, और इन दोनों में से भी 2 की तरफ ज्यादा बात जाएगी। तो कहीं ना कहीं यू विल आखिरी में आते 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 एट द एंड ऑफ द 2 hours यू विल समवेयर कम नियर टू दिस 50% ऑफ चॉइस। मतलब मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ इस चीज के बारे में, बट यहां तक तो हाँ बात बन सकती है। ठीक है, और इतनी भी बात बन जाए तो बात बन जाए। 75 लास्ट, which one of the following has been constituted under the Environmental Protection Act 1986? CWC, CGWB, CGWA, National Water Development Agency. Yes, one is a commission, one is a board, one is authority, one is agency. Sir, B and C similar one. B and Central Groundwater Board, Central Groundwater Authority. सिमिलर ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, बोर्ड और अथॉरिटी में चेंज है बस, तो इन्हीं दोनों में से हो सकता है। Sir, मोस्ट option A seems to be wrong because it is a commission and I think it is executive action, not a statutory. डाउट में ही रहे हुए हैं इसमें, इस वाले में। ठीक है, तभी कहा था कि ये थोड़ा सा ऐसे ही ओपन एंडेड वैसा सा क्वेश्चन है। तो अगर इसको उस गोल्डन में ऐसी टाइप अगर करना चाहो इसके साथ तो यू कैन, नो वरीज रिगार्डिंग दैट। ठीक है, इस सेशन के रिगार्डिंग होमवर्क डन हो गया? क्या है? डैम्स, डैम्स, रिवर्स, रिवर्स, State. स्टेट्स। states. ठीक है, do it by 9 p.m. I'll upload the cards, I'll let you know in the group. फिर उनको करके देख लेना। ठीक है, will require just today as well to work on some of the things on the website.
and then it will be all yours completely. ठीक है, तब तक just navigate it, try to find what you can do with it, how you can utilize in the most efficient manner. ठीक है, and then we'll start working with it. चलो इसको कर लेना, just take 2 minutes break and we'll be back. Not much. Okay.